Hello and welcome in this new lecture. And in this lecture, we will be discussing on psychoanalytic criticism. In last classes, we have discussed structuralism, post-structuralism, modernism, and postmodernism, along with deconstructive studies. So thereafter, we're going to discuss psychoanalytic criticism. So first of all, just see this point that psychoanalytic literary criticism, psychoanalytic literary criticism is literary criticism or literary theory which in method, concept, or form is influenced by the tradition of psychoanalysis begun by Sigmund Freud. Okay, so remember this point that the background and basis and its theoretical part is constituted from Sigmund Freud. Actually, Sigmund Freud was a psychoanalyst, a psychologist, psychiatrist, and physician. He was a Swiss. I'm not going in a biographical detail of Sigmund Freud, but just we will study, we'll try to understand his concepts of psychoanalysis. And in his concept of psychoanalysis, he talks on mental status and the mechanism of human mind. And his famous study is Oedipus complex. So next point is that it attempts, it means the psychoanalytic criticism. What is the aim of psychoanalytic criticism is that it attempts to identify such Freudian concepts as the Oedipus complex, Freudian slips, id, ego, and superego. Remember these 3 points. These are the basis of Freudian psychology or Freudian concepts, that is id, ego, and superego, and so on, and demonstrate how they influence the thoughts and behaviors of fictional character. So remember this point that Sigmund Freud had studied all his concept, all his techniques over human mind in the society in real life. But actually, psychoanalytic criticism uses all those thoughts, all those things and concepts over the characters of literature. Means this psychoanalytic criticism is applying psychic concepts of Sigmund Freud over characters of any literary text, whether it is drama, poetry, or novels, or any other kind of literature. So let's begin and just write down some more points, more concepts of this psychoanalytic criticism. So next point is that psychoanalytic criticism psychoanalytic criticism psychoanalytic criticism is a form of is a form of criticism which uses some some of the techniques
techniques of psychoanalysis, psychoanalysis in the interpretation of literature. ठीक है, तो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म क्या करता है, जो साइको एनालिसिस के कुछ इंटरप्रिटेशन के टूल्स हैं, साइको एनालिसिस के जो कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स का यूज करता है किस लिए, जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं, लिटरेचर है, उसकी स्टडी के लिए, उसकी एनालिसिस के लिए किन टूल्स का यूज किया जाता है, टेक्निक्स का यूज किया जाता है, वो टूल्स एंड टेक्निक्स साइको एनालिसिस में यूज होती हैं, और उसको यूज किसने किया, सिगमंड फ्राइड ने। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। these theories these theories were developed by Austrian psychologist psychologist Sigmund Freud. सिगमंड फ्राइड, हमेशा थोड़ा सा स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा फ्राइड की, फ्राइड की स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्चुअली जो हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं वैसी नहीं है। 1856 टू 1939, तो एक्चुअली हमें सॉरी पहले आपको बताया दैट इज सिगमंड फ्राइड वाज स्विस, सॉरी ही वाज एक्चुअली ऑस्ट्रियन, ठीक है, ऑस्ट्रियन बॉर्न psychologist and physician. Okay, so he develops number of techniques for the treating mental patients, and these techniques were actually used by Sigmund Freud to study literature. So let's move ahead and go to his concepts, his key concepts. What are his concepts? That is, Freud presented a three-part method या मेथड के बजाय मॉडल लिखें देन बेटर होगा, थ्री पार्ट मॉडल ऑफ साइकी, ठीक है, साइकी का मतलब होता है माइंड, और ये थ्री पार्ट क्या है, यहीं पर लिखिएगा, डिवाइडेड डिवाइड्स, लिखिए ही डिवाइड्स इट into, he divides it into number one id, number two ego, and number थ्री सुपर ईगो, ठीक है, ये थ्री पार्ट्स जो है इन्होंने बताए, और इन्होंने किसकी स्टडी की, देन ही स्टडीड या his concepts are based on
the notion of unconscious. ठीक है, तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, अनकॉन्शियस के पॉइंट पर बेस्ड है। और इन्होंने क्या थियरी दी, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ, he means Freud, gave the concepts of जो इनके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, उन की कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या की कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए थे। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट इनका जो सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिपस कॉम्प्लेक्स। एडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एडिपस कॉम्प्लेक्स एक्चुअली इज बेस्ड ऑन एडिपस मिथ। और आई थिंक आप लोगों को एडिपस मिथ पता होगी। एडिपस मिथ में एक कहानी आती है जहां पर एडिपस marries his own mother. Okay, so on the basis of this Oedipus complex, the Shakespearean play Hamlet is also analyzed, and it is analyzed that Hamlet himself has some instinct of love towards her mother. That's why he was unable to kill his uncle Claudius. So these are Oedipus complex. Actually, Oedipus complex is just uh, sexual attraction of a son towards his mother. ठीक है, तो एडिपस कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में क्या है, वो है किसी सन का उसकी मदर के लिए एक जो है अट्रैक्शन। ठीक है, and in this attraction the child starts feeling for his father as an opponent। ठीक है, वो एक अपोनेंट के रूप में जो है अपने फादर को देखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट जो है फ्रायड देते हैं वो है लिबिडो। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबिडो। ठीक है, लिबिडो क्या है, इसके लिए कुछ एक बातें हम लोग यही लिख लेते हैं। दैट इज द एनर्जी ड्राइव, द एनर्जी ड्राइव associated with sexual desire। ठीक है, and other thing is that there is 3 stages of libido। ठीक है, क्या है, 3 stages of libido। ठीक है, इन्होंने इसकी 3 स्टेजेस बताई हैं, और उन 3 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज क्या है, नंबर 1 तो कहते हैं दैट इज ओरल या द ओरल। नंबर 2 द एनल, and number 3 is phallic, PHALIC, sorry LLIC। ठीक है, तो ये है 3। आगे नेक्स्ट जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एरोस। नेक्स्ट वन इज एरोस, EROS, एरोस। ठीक है, एरोस क्या है, एरोस इज एक्चुअली लव। ठीक है, and this is life
इंस्टिंक्ट, ठीक है, ये क्या है, लाइफ इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये एरोस क्या है, एरोस दैट इज लव, एंड दिस इज लाइफ इंस्टिंक्ट, और इसका जो अपोजिट है वो थेनॉट्स है। ठीक, एरोस एंड थेनाटोस, एरोस एंड एरोस का अपोजिट थेनाटोस, क्लियर। तो एरोस, एरोस दैट इज लव और लाइफ इंस्टिंक्ट, एंड इस अपोजिट इट थेनाटोस, ठीक है। थेनाटोस इज एक्चुअली डेथ, डेथ इंस्टिंक्ट। तो ये क्या है, द डेथ इंस्टिंक्ट, द डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक, तो ये क्या है, डेथ इंस्टिंक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे जो सबसे और अगला ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है द ड्रीम वर्क, द ड्रीम वर्क। द ड्रीम वर्क, इसके विषय में 2-3 पॉइंट हम लोग लिखते हैं, दैट इज द प्रोसेस, द प्रोसेस by which by which real events real events or desires are transformed transformed into dream image, ड्रीम इमेज। एक्चुअली ये जो ड्रीम वर्क है, ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ड्रीम से रिलेटेड है और इनके इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में आता है। फेमस वर्क है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। यहाँ जो है इन्होंने बताया कि जो ये ड्रीम वर्क है इज एक्चुअली द प्रोसेस, ये एक पूरा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज हम लोग हमें डीप डिजायर है, हम उसके विषय में बहुत सोचते हैं, और दूसरी चीज, या फिर कोई चीज हमने रियल इवेंट देखा है, कोई एक चीज रियल में देखी जो कि हमारे दिमाग में अटक गई, दिमाग में हमारे बस गई, तो वो चीज क्या होती है, ट्रांसफर कर दी जाती है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है इनटू आवर ड्रीम। वो हमारे ड्रीम के जो इमेजेस होते हैं, उस ड्रीम की इमेजेस में वो आते हैं। ठीक है, ये उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में कहा था, और इसके लिए उन्होंने दो चीजें बताई थी, तो यहीं पर लिखिएगा। इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करते हैं। नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट को लिखेगा, वन पर्सन और इवेंट, वन पर्सन और इवेंट is represented by another, by another मीन्स ड्रीम में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मीन्स जो एक रियल पर्सन है या रियल इवेंट है, उसको किसी दूसरे पर्सन या इवेंट के द्वारा एक्सचेंज कर दिया जाएगा। एक चीज आप ध्यान देखेंगे, अगर कभी आप अपने सपनों को एनालाइज करने की कोशिश करें, देन आप पाएंगे कि सपनों में लॉजिक नहीं होता। ठीक है, सपने में क्या नहीं होता, लॉजिक नहीं होता।
ठीक है। जो भी इमेजेस होती हैं वो आर्बिट्रेरी होती हैं, कहीं से भी कहीं की चीज कोरिलेट हो जाती है। ये बात आपको समझ आया? तो इसको इन्होंने क्या कहा टर्म्स के माध्यम से, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी चीज उन्होंने जो बताई, सेकेंड थिंग इज दैट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। ये क्या है? ये है अ नंबर ऑफ पीपल events or meanings, events or meaning, events or meanings are combined and combined combined and represented represented by single image, single image in the dream, thematically in the dream। ठीक है। तो इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई, उन्होंने क्या कहा, दैट इज ड्रीम वर्क। और इन्होंने कहा क्या, ड्रीम वर्क में दो पार्ट हो गए। क्या? पहला हुआ डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हो गया कंडेंसेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली एक ऐसा पर्सन या इवेंट है। और कंडेंसेशन में इन्होंने बताया कि जो कोई पीपल है, कोई इवेंट है, या कोई मीनिंग है, वो क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। ठीक है। और वो सिमिलर टाइप ऑफ चीजें मिल करके, कंबाइन होकर के किसी एक पर्टिकुलर चीज से रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है। मतलब जो चीजें हैं वो कंबाइन हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, मिक्स हो सकती हैं, आर्बिट्रेरी हो सकती हैं। बट जो हमारे लाइफ का इवेंट है वो जो है कहाँ से आएगा, निकल करके सामने आता है। ठीक है। अच्छा, ये चीजें थोड़ा सा आपको लाइन की नीचे नीचे की लाइन नहीं दिख रही होगी, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कंबाइंड बाई एंड रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल इमेज इन अ ड्रीम। ये लास्ट लाइन आपको थोड़ा सा कम दिख रही होगी। ठीक है। इसको फिर से लिख लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा उसमें पूरा दिखेगा आपको। सिंगल इमेज इन द ड्रीम, ये सिंपल सा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आगे इन्होंने साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के विषय में एक नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। इसको पहले लिख लेते हैं, समझिए। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिक, एक साथ में, एनालिटिक क्रिटिसिज्म explores the language, the language of the unconscious, unconscious of the repressed and the hidden, and the hidden as embodied
in literary or cultural texts such as art or fiction, art fiction, ठीक है। मीन्स आर्ट के किसी भी फॉर्म में या फिक्शन में इन चीजों को समझा जा सकता है, ठीक है। आगे समझेंगे। विद पर्टिकुलर, यहीं पर आगे ऐड कर लीजिए, विद पर्टिकुलर attention to the repression of sexuality, repression of sexuality and its desire। अब यहां पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म का जो मेन सब्जेक्ट है जिसको साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म एक्सप्लोर करता है वो है अनकॉन्शियस। एक्चुअली में अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड जिसे हम लोग कहते हैं वो ह्यूमन बीइंग का सबसे एम्बिग्यूअस और सबसे हिडन पार्ट है और इसके विषय में कुछ भी जानना और समझना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। शायद ही साइकोलॉजिस्ट जो हो जो इसमें ट्रेंड है वो इस चीज को थोड़ा बहुत अपनी जो साइको एनालिटिक टेक्निक्स है उसके माध्यम से चीजों को समझ पाए। अदरवाइज ये चीजें जो है बहुत ही एम्बिग्यूअस हैं और इनको समझना बड़ा कठिन है, ठीक। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को जो अनकॉन्शियस है, और दूसरी एक खास चीज है अनकॉन्शियस में होता क्या है, रिप्रेस्ड डिजायर्स होती हैं, रिप्रेस्ड मेमोरीज होती हैं। अभी जब हम लोग इड ईगो और सुपर ईगो को समझेंगे तो वहां पर हमको समझ में आया किस तरह आएगा कि किस तरह से जो रिप्रेस्ड डिजायर्स होती हैं, सप्रेस्ड डिजायर्स होती हैं, या ऐसी कोई डिजायर जो पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है, वो सारी की सारी कैसे अनकॉन्शियस में जाती हैं और कैसे अनकॉन्शियस में होती हैं। तो उनका जो है कहां पर स्टडी करते हैं, सोसाइटी में नहीं करते, कल्चरल और लिटरेरी टेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। कल्चरल लिटरेरी टेक्स्ट से इनका यहाँ मतलब है कि आर्ट फॉर्म्स या फिर फिक्शन, ठीक है, आर्ट फॉर्म में या फिक्शन में, ड्रामा में, फिक्शन में, पेंटिंग में, ठीक है, म्यूजिक में, तो इन सब में ये किस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट द अनकॉन्शियस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो अनकॉन्शियस माइंड में चीजें दबी हुई हैं उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है। इसमें आप आगे पाएंगे कि जो है जो फ्रायड ने टेक्निक यूज की, एक्चुअली इन्होंने एक साइको मेंटल डिजीज होती है जिसको जो है एक कई नामों से जानते हैं, उसमें आदमी को दौरे पड़ते हैं, इसको हिस्टीरिया कहा जाता है। तो हिस्टीरिया के इलाज पर इन्होंने काफी कुछ काम किया और हिस्टीरिया के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा इलाज सुझाया, दैट इज की नरेटिंग, means what had happened to the patient in the past time, let them narrate frequently, and doctor must play a role of a good listener, ठीक है। वो जो है डॉक्टर जो है उसकी उस नैरेटिव को जो उसके साथ पहले हैपन हुआ है उसको बहुत ध्यान से सुने और समझे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उन्होंने सजेस्ट किया, एक रेमेडी सजेस्ट की, और यहीं से इनका जो आइडिया हुआ अनकॉन्शियस का डेवलप हुआ वो डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा ईगो, सुपर ईगो एंड इड। इसके विषय में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसके आगे की चीजें हम लोग देयर आफ्टर डिस्कस करेंगे। यहाँ इस लेक्चर में इतना ही हम लोगों ने समझा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझा कि ये साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है क्या, इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और फ्राइडियन कॉन्सेप्ट्स क्या है,
अब उन्हीं फ्राइडियन कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है ईगो, सुपर ईगो एंड ईड। जो माइंड के तीन स्ट्रक्चरल पार्ट बताए फ्रायड ने, ये तीनों क्या होते हैं इस चीज को समझने के लिए हम लोग तीनों को अलग अलग समझेंगे, डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को ये साइको एनालिसिस जो है ये अच्छे से समझ में आएगी। तो ईड, सुपर ईगो और ईगो, इसको हम लोग समझें। उसके बाद जो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस को किस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वो भी इसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। देयर आफ्टर हम लोग इस जो साइकोएनालिटिक थियरी है इसके अलग थियरिस्ट जो हैं, सीजे यूंग हैं, और इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो उसको भी कमेंट में लिखें। और मैंने पहले भी आपको कहा कि जैसे आप लेक्चर देखते हैं तो अपना कोई एक ट्रेस छोड़ दें, एक छोटा सा कोई भी कमेंट लिख दें। आपका कमेंट लिख देने से हमें पता चलता है कि हाँ इस स्टूडेंट ने देख लिया और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जनरली आप सिंपली कमेंट बॉक्स में ही लिख दें, क्योंकि मैं कमेंट सारे चेक करता हूँ कि अगर हाँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर्टिकुलरली ये हो जाता है कि हाँ इस लेक्चर से क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ उस रेफरेंस में हम आंसर दे लेते हैं। वैसे आप व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, आप कमेंट में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक। तो कमेंट में अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो वो अदर स्टूडेंट्स को भी विजिबल हो जाएगा, वो भी देख करके उसको समझ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।